Hello everyone, I am Dr. Shweta Chaudhary, and in this video we'll be talking about the exploitation of dentists in India and in general, especially the fresher young dentists. This video will be based on my personal experiences. So as soon as I graduated and I was looking for jobs, I experienced that there is a lot of exploitation जो कि dentists करते हैं. I think this is a very sad thing because एक हर एक dentist जो इस फेज से गुजरता है, जब भी कोई ग्रेजुएट होता है उससे लेके जब वो क्लिनिक खोलता है तो उसको खुद को पता होता है कि वो किस किस स्टेप्स से मतलब एक डेंटिस्ट को गुजरना पड़ता है. उसके बाद जब वो अपना क्लिनिक खोलते हैं देन दे एक्सप्लॉइट द फ्रेशर्स हु आर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज इन द नेम ऑफ कि हम आपको पेशेंट सिखाएंगे, हम आपको काम देंगे, वील पे यू वेल ओनली to make them work like dental assistants. So I wanted to make this video for the awareness of the young graduates. Somehow I knew that most young dentists who are graduating, they don't know RCTs, they don't know basic work. But after having done so much work in my college and after having done a course as well, I realized that most of the clinicians, they just want a dental assistant in the name of a BTS graduate. They will never ever transfer their own patients to a dentist, which is quite understandable. But at the same time, you know, making a young dentist work like a dental assistant is very unethical according to me. It is very important and it is kind of mandatory to learn the clinical scenarios as well. After college obviously we have no experience and most people what they do is कि वो third year से start कर देते हैं to go into the clinics and they work there for free to just for the clinical experience. If the time permits, in my college it was 9 to 5, so it was impossible for me to go out to other clinics as well for work. But there are many colleges in which the timing is 9 to 3 and it permits them to work in other clinics even as a dental assistant, and they work for free because they are not even graduated, so it is okay. But after graduation, when you go out for work, in 99% of the clinics you will not be given any patients, especially for the first year. I will understand this in a situation when the dentist has graduated with very less clinical experience and he has not done any patients or very less patients. So it is quite understandable कि आप किसी senior dentist को जाके shadow करो just for a period of 6 months to 1 year, and after that when they trust you they will give you patients. That is okay. What is unethical to me is कि false promises. I mean, the dental clinicians, they hire you and they demand that you know RCT, you know fillings, you know everything, like, and you have a minimum of 2 years of experience and everything. They demand that. So if you're demanding the experience and if you're demanding a particular clinical skill from a dentist, then I think you should transfer the patients or you should provide patients to that dentist because you are hiring them. The first thing is कि आप उनको बहुत ही कम पैसा दे रहे हो, ठीक है. लाइक नॉर्थ इंडिया में the salary is 15,000, 10,000. In Delhi and Mumbai it could vary from 20 to 25,000. So पैसा तो आप बहुत ही कम दे रहे हो for full time. फिर आप उससे डिमांड कर रहे हो कि आपको 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड उसको सारा काम भी आना चाहिए. उसके बाद भी आप उससे सिर्फ असिस्टेंट का काम करवा रहे हो. तो जो यंग लोग देख रहे हैं, डेंटल असिस्टेंट का काम क्या होता है? क्लिनिक को मैनेज करना, पेशेंट्स को कॉल करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, एल्जिनेट मिक्स करना और ट्रे लगाना डेंटिस्ट के लिए, सक्शन पकड़ना, ये सब चीज़ें. देखो, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि इमीडिएटली ग्रेजुएट होने के बाद चाहे कि आपको कितना भी काम आता हो, आपको शैडो करना ज़रूरी होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट का काम करने के लिए किसी के क्लिनिक पे लग जाओ. जस्ट बिकॉज आपको किसी भी क्लिनिक पे काम करना है, आप ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी क्लिनिक पे मत लग जाइए, चाहे वो कितना ही फेमस क्लिनिक क्यों ना हो, चाहे वो उनका आपके कोई रिलेटिव के नोन क्यों ना हो. आपको उनसे ये चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि आप कितने टाइम बाद मुझे पेशेंट्स दोगे. चलिए, मुझे अभी इस स्टेज पे RCT नहीं आती है बट मैं आपको शैडो करूँगी, मैं सीखूँगी, आप मुझे सिखाइए. तो आप कितने टाइम बाद ट्रस्ट कर सकोगे मुझ पे. आपको ये चीज़ें डिमांड करनी चाहिए फ्रॉम द सीनियर डेंटिस्ट सो दैट यू डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड. वर्किंग एज अ डेंटल असिस्टेंट फॉर मोर देन अ ईयर is totally unreasonable to me. I think 1 year is enough to just know what kind of how to do the procedures, you know. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप क्लिनिक को रैंडमली मत ढूंढिए, आप चूज़ करिए आपको किस तरीके का काम पसंद है. अगर आपको स्पेसिफिकली इम्प्लांट्स में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे क्लिनिक में जाइए जहाँ पे बहुत अच्छे इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं. अगर आपको कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट है तो किसी कॉस्मेटोलॉजी के क्लिनिक में जाइए. आपको RCT में इंटरेस्ट है तो एंडोडोंटिस्ट के क्लिनिक में जाइए. I think you should research well before joining anywhere, and my advice to you will be
कि अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है तो आप पहले ही क्लियर कर लीजिए डेंटिस्ट से, एंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप किसी को शैडो करिए, उसके बाद आप प्रोग्रेस कर जाइए। उसी चीज़ में आप 2-3 साल तक अपना टाइम वेस्ट मत करिए। किसी भी एक क्लिनिशियन के अंडर लॉन्ग टाइम तक काम करना ठीक नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक हर क्लिनिशियन का अपना एक्सपीरियंस होता है, एंड आई थिंक मल्टीपल लोगों से सीखने का यही एडवांटेज होता है कि आपको उनका एक्सपीरियंस आपको भी समझ आता है, आपकी स्किल्स बेटर हो जाती हैं बिकॉज आपने मल्टीपल टीचर से सीखा होता है। ये चीज़ मुझे एक पीछे के बहुत फेमस डॉक्टर ने समझाई थी, जो कि एक काफ़ी अच्छे ENT सर्जन है। ही इज़ अ वेरी फेमस सर्जन इन चंडीगढ़। ही टोल्ड मी कि उन्होंने MS PGI से करी थी। तो जब उन्होंने MS करी थी तो उन्हें लगता था कि उनको सब कुछ आ चुका है, उनको सारा एक्सपीरियंस उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, अब कुछ और सीखने को नहीं है। बट उसके बाद जब वो निकले तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें नहीं आती थी। तो उन्होंने 6 साल तक अलग अलग डॉक्टर्स को शैडो किया और उनसे काम सीखा, उनसे नई नई टेक्निक्स सीखी, और आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि उनका खुद का हॉस्पिटल है। तो आई थिंक शैडो करना डेरोगेटरी नहीं होता है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप को टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, एंड आई थिंक द शैडोइंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क यू नो। एंड जस्ट आप एक असिस्टेंट के तौर पे नहीं जा रहे हो, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप एक डेंटल असिस्टेंट नहीं हो। डेंटल असिस्टेंट का एक सेपरेट 2 साल का कोर्स होता है। आप एक एसोसिएट डेंटिस्ट हो, यू आर नॉट अ डेंटल असिस्टेंट। आई थिंक यू शुड जस्ट एनग्रेव दैट इन योर हेड, एंड you should respect yourself enough to not get exploited by the senior dentist and choose someone who will be a teacher who, मतलब पैसों के पीछे आप किसी भी क्लिनिक पे मत जाइए कि ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो चलो कहीं पे भी चल लिए। You as a doctor, you need a teacher and you need a guru and you need someone who will guide you in the future prospects. I will be making more videos related to dentistry as well. So I hope you liked it, and I hope मेरे experience से जो लोग देख रहे हैं उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, उनको कुछ समझ आएगा, and thank you so much.